سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بڑے فیصلے کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے گھریلو صارفین کو 500 یونٹس تک سبسڈی دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی وفاقی حکومت کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات لیں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے بجلی کے بلوں میں بڑے ریلیف سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی وصولی کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے 10 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس موقع پر عدالت نے زرعی اور گھریلو صارفین کے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ 500 یونٹ تک گھریلو صارفین کو زیادہ سے زیادہ سبسڈی دی جائے۔ عدالت نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سولر اور سمیت دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے 81 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف نیپرا کارروائی کرے اور بجلی کے نرخ میں اضافہ کرنے سے متعلق صارفین کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے 10 اکتوبر 2022 کو 3659 درخواستوں پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں دیگر سرچارجز کی وصولی کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا۔ اشفاق یہ بھی بتائے گا، آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران کہا گیا ہے کہ فی یونٹ جو ہے 200 سے زیادہ یونٹ والوں پہ چارجز لاگو کیے جائیں، تو کہ اب ان پر یہ اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ عدالت کا حکم آ گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے گھریلو صارفین کو 500 یونٹس تک سبسڈی دینے کا حکم دیا۔ عدالت کی وفاقی حکومت کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی ہدایت۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بجلی کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول ونگ متحرک جان بچانے والی 95% ادویات دستیابی ممکن بنا دی ہے۔ صرف 5% ادویات کی قلت باقی ہے۔ بلیک میں ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مریضوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ صحت کی جانب سے جان بچانے والی ادویات کی قلت پر قابو پا لیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرگ کنٹرول ونگ متحرک چیف ڈرگ کنٹرولر اظہر جمال سلیمی کی فارما کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز کو ادویات کی سپلائی بہتر کرنے کی ہدایت۔ اظہر جمال سلیمی کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی 95% ادویات کی اسپتالوں اور فارمیسیز میں دستیابی ممکن بنا دی گئی ہے۔ صرف 5% ادویات کی قلت ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ایپیوال، ہیپرین، کیٹسول، ریپیلوک اور سٹریپٹوکائنس انجیکشن کی قلت ہے۔ جلد ہی تمام جان بچانے والی ادویات کی قلت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ چیف ڈرگ کنٹرولر اظہر جمال سلیمی کا کہنا ہے کہ بلیک میں ادویات فروخت کرنے والی فارما کمپنیوں، ڈسٹریبیوٹرز اور فارمیسیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ جیل بھرو تحریک سے حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت حاصل کریں گے، پرامن جدوجہد کے طور پر جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں ملک میں معاشی بحران ہے، اس لیے ہڑتال نہیں کر رہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہڑتال کریں، پہیہ جام کریں، پتھراؤ کریں۔ آج کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں ہے۔ کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آج آئی ہے۔ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری، تو ملک کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں۔ تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے اور 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی، لہٰذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک۔ میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں، ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر
पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है, और इसकी चंद दिनों के अंदर होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप अपनी आप जो रज़ाकार हैं वो सामने आएँ, और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी तहरीक है, इससे हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी भी देगा, और हकीकी आज़ादी का मतलब हकीकी जमहूरियत वो भी देगा, और वो इंशाअल्लाह वही एक पाकिस्तान को एक वो जमहूरियत जिधर रूल ऑफ लॉ है, जिधर कानून की हुक्मरानी है, वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब में इंतखाबात मुल्क भर के आम इंतखाब के साथ करवाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं इंतखाबात पर अरबों रुपए के खर्चात आते हैं, 2 सूबों में इंतखाबात के लिए जिद क्यों की जा रही है। लाहौर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, बार बार इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, 6 माह बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात आ रहे हैं, फिर 2 सूबों में जल्द इलेक्शन की जिद क्यों की जा रही है। हमारे मुल्क में एक एक पाई की ज़रूरत है, जहाँ कभी सैलाब की बहाली के लिए या बाकी और फिस्कल चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा सर उठा के ठहरे हैं, वहाँ पे एक माइंड सेट ये है कि नहीं आप इलेक्शन पे इलेक्शन बस कराते जाएं। पता है कि 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन आने हैं, लेकिन 2 सूबों में इलेक्शन बस आज ही हो जाने चाहिए और तमाम चीज़ें। तो हम अगर इलेक्शंस में ही रहेंगे, अरबों रुपए वेस्ट करते रहेंगे, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। गवर्नर पंजाब ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क में माशी मसाइल हैं, लेकिन 20 हलकों में एक ही शख्स खड़ा होगा और फिर तमाम सीटों से इस्तीफा देगा, फिर इन हलकों में इलेक्शन करवाए जाएंगे। इस टाह को बंद होना चाहिए। सन 47 से लेकर 2018 तक जितना डेट था उसका 78% मजीद 3-3.5 साल में जो है वो मुल्क के ऊपर आया, और ह्यूज डेट बर्डन के ऊपर जो डेट सर्विसिंग है वो करनी पड़ रही है। बहरहाल और भी बहुत से चैलेंजेस हैं। कभी कहा जाता है कि जी 20 हलके हैं तो उसमें एक ही शख्स खड़ा हो जाएगा और वो 20 हलके जीत के दोबारा फिर रिज़ाइन कर देगा, फिर अगले 33 हलकों में एक ही शख्स खड़ा हो जाएगा, फिर रिज़ाइन कर देगा, तो बार बार इलेक्शंस जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर खजाना मुल्क को जल्द मुश्किल हालात से निकाल लेंगे। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान हमला केस में दूसरी जेआईटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तफ्तीशी ऑफिसर सारा रिकॉर्ड ले गए, जेल भरो तहरीक बहुत जल्द शुरू करेंगे। यह रिपोर्ट देखें। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पहली जेआईटी हमारी हुकूमत ने बनाई थी, इस पर दबाव डाले बगैर इसकी तफ्तीश सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि असम्बलियां तहलील होने के बाद ये जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवा रही हैं। ये जो जेआईटी बनी हुई है पंजाब के अंदर, जो नोटिफाइड जेआईटी है, उसके तफ्तीशी अफसर को आप मेहरबानी करके किसी तरीके से उस पर प्रेशर डाले बगैर उसने जो तफ्तीश की है वो सबके सामने आनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, इमरान खान की हुकूमत में दहशत गर्दी के वाकयात कम थे, हुक्मरान गैर संजीदगी से एपीसी की बात करते हैं, जेल भरो तहरीक बहुत जल्द शुरू करेंगे। हमें पाकिस्तान के लोगों से बहुत हमदर्दी और हमें बहुत तकलीफ है जो हमले हो रहे हैं, टेररिज्म हो रही है। इमरान खान साहब आज का नहीं, बहुत अरसे से इस टेररिज्म के ऊपर काम किया, और 3 साल जब तक हमारी हुकूमत रही, टेररिस्ट अटैक्स बहुत हद तक कम हो चुके थे। अचानक अब जो ये बढ़े हैं पिछले 8-10 महीने के अंदर, तो ये जो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, जो ना अहल इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, इसने क्यों नहीं उसके बारे में कुछ किया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि सहाफियों की आवाज़ दबाने के लिए अब जेलों में डाला जा रहा है। सैफुल मलूक कोकर कहते हैं कि मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से मुतालिक एतमाद का इजहार किया है। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाहौर को अच्छे तरीके से चलाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा लाहौर को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चलाऊँ और वर्कर को हक दूँ। सर, आइंदा इंतखाबात के हवाले से या पार्टी की जो तंजीम साजी है उसके हवाले से कोई खुसूसी गुफ्तगू की गई है? तंजीम साजी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ब्रीफ़ किया है कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, उन्होंने खुश हुए, उन्होंने बिल्कुल ठीक है ऐसे करें और लाहौर को आगे लेके चलें, और जो इलेक्शन का बाई इलेक्शन का मसला है वो जमात का मसला जो उसका फैसला होगा उसका।
पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। फ़िलहाल तो इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली करा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब ऑफिस में निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने 7 से 12 फरवरी तक चोलिस्तान डेजर्ट रैली का ऐलान किया और बताया कि रैली में इंटरनेशनल समेत 150 मर्दों खवातीन ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाली 18वीं जीप रैली 500 किलोमीटर पर मुखीत होगी। चोलिस्तान डेजर्ट रैली की 9 कैटेगरीज होंगी और जो इनामी रकम है वो 50 लाख रुपए है जो जीतने वालों में तकसीम होगी और ये डेजर्ट रैली 4 दिन पर मुहित होगी। फूड और तजारती मेला भी रैली का हिस्सा होंगे। आमिर मीर का मजीद कहना था कि इंतखाबी हालात को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब भी इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करा देंगे। गिरफ्तारियां वफाक ने की हैं, पंजाब ने नहीं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसकी गिरफ्तारी तो होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने हमें शेड्यूल देना है, हमने इलेक्शन करवा देना। बाकी जो आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां फेडरल गवर्नमेंट की हैं, पंजाब में तो है कोई नहीं। कानून जो भी तोड़ेगा वो गिरफ्तार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर बहावलपुर, सेक्रेटरी टूरिज्म, एमडी टूरिज्म और सेक्रेटरी इत्तलात भी मौजूद थे। हुकाम ने बताया कि रैली के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए 16 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त को मशरूत तौर पर काबिल समाअत करार दिया। अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए 16 फरवरी को पेश होने का हुक्म। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 1973 के आइन में आर्टिकल 224A की तशरीह शामिल है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। परवेज इलाही, हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि एतराज़ात के बावजूद मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बाकी 3 नामों को मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग एक सियासी जमात को फायदा पहुँचाने के लिए हो रही है, लिहाजा अदालत निगरान वज़ीर आला की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे। साबिक वज़ीर आला पंजाब के मुशीर आमिर सईद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब पुलिस को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। यह रिपोर्ट देखें। साबिक वज़ीर आला पंजाब के मशीर आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने आदम सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से असगर गुल और आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत के हुक्म पर CCPO लाहौर पेश हुए और बताया कि ज़हूर इलाही रोड के 44 घरों के प्राइवेट कैमरों को चेक किया गया, लेकिन आमिर सईद रां के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। CCPO ने कैमरों की तस्वीर भी पेश की, जिनका अदालत ने जायजा लिया। CCPO लाहौर ने बताया कि आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने CCPO की रिपोर्ट पर अदम एतमानान का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि अगर आप नाकाम होंगे तो हमें कोई और एक्शन लेना होगा। समाअत के बाद आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इतने दिन गुजर गए लेकिन आमिर सईद रां को बाजियाब नहीं करवाया जा सका, जो कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 7 दिन से उठा के आपने उसको गायब किया हुआ है। आप जो है वकला की तरफ रुख ना करें, ना FIA करे, ना वो करे। अदालत के फैसले तक अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे और इंशाल्लाह कल IG साहब आ रहे हैं, या वो हमारे वकला के मेहमान होंगे या वो आमिर सईद रां को लेके आएंगे। अदालत ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत तलब करते हुए दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। और नाज़रीन, कुरान पाक के तर्जमे में तहरीफ का ये मामला है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए पैमरा की मुतफिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को मतनाज़ वेबसाइट को ब्लॉक करने की इजाज़त दे दी। कुरान पाक के तर्जमा में तहरीफ का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने हसन मुआविया की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने फैसले पर अमल दरामद करने का मामला 15 रोज़ में वफाकी काबीना में पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने मुतनाज़ा वेबसाइट को अदालती फैसले की रोशनी में फौरी ब्लॉक करने का हुक्म भी सादर किया। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, लिहाजा अदालत 40 मुतनाज़ा वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की इजाज़त दे। दौरान समाअत PTA के वकील ने बताया कि विकीपीडिया
को पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का कहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई, जिसके बाद विकिपीडिया को बंद कर दिया गया है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत मजीद 40 मुतनाज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की इजाज़त दे। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मजीद 40 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG, एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म और सेक्रेटरी औकाफ को 16 फरवरी को तलब कर लिया है। हजूरी दरबार मेन बाजार चामीरा सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। मेन बाजार सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज निज़ाम न होने से पानी सड़क पर बहने लगा है। मज़ीद तफसीलात देंगे अवैस महमूद से। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, हुजूरी शाह दरबार चाहमीरा का मेन बाज़ार जो है ये टूट फूट का शिकार है और अरसा दराज से ये सड़क जो है वो टूट चुकी है, जबकि सीवरेज का नाकिस निज़ाम है और सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से सड़क पर जगह जगह जो है वो पानी जो है वो खड्डों में मौजूद है, जबकि साफ़ पानी की जो लाइन्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी जो है इन साफ़ पानी के लाइन्स में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से यकीनन घरों में जो है वो गंदा पानी जा रहा है इस्तेमाल का। हमारे साथ इलाका मकी हैं, सरापा एहतजाज हैं, क्या कहते हैं इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। 4 साल हो गया हमारा ये मसला है, 4 साल से सड़क ख़राब है। सड़क ख़राब होने के साथ साथ ये पानी का मसला बना है। 4 साल से हम ये देख रहे हैं ये पानी पीने वाला और ये गंदा पानी मिक्स हो गए घर आ रहे हैं घरों में। और दूसरी बात ये है कि 1 माह हो गए सड़क तोड़ी इन्होंने, तो 1 माह के बाद 15 दिन बाद आए मलबा उठाने के बाद आए ही नहीं। ये देख लें, आप सबको दिखाएं। 1 माह से जायद का अरसा जो है वो गुजर चुका, खुदाई की और यहाँ से मलबा जो है वो उठाया। यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, हर तरफ पानी ही जो पानी है और शहरियों को यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे ज़्यादा जो मसाइल है ना इस बाज़ार में वो ये है कि यहाँ पे कोई भी जो मेन मसला है ना, कोई नमाजी कोई गुजर नहीं सकता, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, कोई भी दुकानदार। अगर कोई जनाजा यहाँ से गुजरता है वो नहीं गुजरा जाता, उससे बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो जिससे भी पूछते हैं कि नुमाइंदी अवाम की नुमाइंदों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये वासा वाले के पास जाएँ। वासा वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी अपने चेयरमैन के पास जाएँ, वो आपका मसला हल करेंगे। उनको सारा कुछ हमने बताया हुआ है, मगर हमारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। बिल्कुल, अरसा दराज से मसला जो है ये है और यहाँ पर हमारा कोई भी जो है सुनवाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं, ऐसा कहना है इलाका मकीनों का। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं सबसे पहले जो सीवरेज का मसला है वो हल किया जाए और उसके बाद साफ़ पानी की जो लाइन्स हैं वो तब्दील की जाएँ और फिर हमारी सड़क जो है वो बनाई जाए, उसकी तमीर मुरम्मत और बहाली जो है इसका काम जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। इलाका मकीन जो है वो मुतलका इदारों से जहाँ अपील करते रहे वहीं सरापा एहतजाज भी बने रहे, जबकि इस मेन बाज़ार के जो यहाँ पर जो मौजूद ताजर बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज जो है वो दिखाई दी। उनकी जानिब से ये कहना है कि सड़क पर 24 घंटे पानी मौजूद रहने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर उनका कारोबार जो है वो होता है बल्कि वो जराइम की दुनिया से खबर देंगे आपको। 2 ग्रुप्स में फायरिंग के दौरान बच्चों की हलाकत का ये मामला है। शादरा में बच्चों के लवाहिकीन के एहतजाज जारी हैं। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादरा में मौजूद हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि शादरा के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे उसकी जद में आकर चाबहाक हो जाते हैं और उन्हीं बच्चों के लवाहिकीन इस वक्त शादरा चौक में सरापा एहतजाज बने हुए हैं और एहतजाज के बायस ही ट्रैफिक की शदीद दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार और कभी जाम दिखाई दे रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं और शादरा चौक से लेकर आगे बत्ती चौक तक जो है वो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, चिकचियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिसके बायस शहरी जो हैं वो ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं मेरे अकब के मनाजिर तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, चिंची, रिक्शे, मोटरसाइकिलें जो हैं वो अभी भी मौजूद है और काफ़ी देर से बत्ती चौक से ये गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं ट्रैफिक के अंदर और सीधा आगे शादरा चौक तक जो है वो ट्रैफिक बदतरीन दबाव का शिकार है। यही सूरत हाल जो है वो रावी के पुल के ऊपर भी नज़र आ रही है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से एक डाइवर्जन लगाई गई है। बिल्कुल, अगर आप शादरा की जानिब आना चाहते हैं तो बत्ती चौक पर एक डाइवर्जन लगाई जो कि सीधा आपको बंद रोड की तरफ ले जाती है। उस डाइवर्जन के ऊपर जाएँ और अगर आप शादरा से आगे शेखुपुरा की जानिब जाना चाहते हैं तो शादरा के थ्रू ये रास्ता जो है वो अख्तियार ना करें, बल्कि सकिया रावी पुल के थ्रू जो है ये रास्ता अख्तियार करें। जबकि
जबकि आपको बता चलूँ कि वार्डन्स की भी नफरी को जो है CTPL का कहना है कि तैनात किया गया है और इस टाइम ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो लवाहिकीन हैं बच्चों के, उनका ये कहना है कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इंसाफ ना मिलने तक जो है वो अपना धरना जारी रखेंगे। और अगर धरना जारी रहता है तो शाहदरा में ट्रैफिक की यही बदतरीन सूरत हाल रहेगी और ये जो 1.5 से 2 किलोमीटर का एक सफ़र है बत्ती चौक से सीधा शाहदरा चौक तक, वहाँ पे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी कतारें लगी रहेंगी और शहरी इसी तरह खुआर होते दिखाई देते रहेंगे। ताहम पुलिस की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से अभी भी उन मुलजिमान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका ताकि उन 2 बच्चों को इंसाफ फराहम किया जा सके। 2 रोज़ कबल ही ये वक़ूआ पेश आया था जिसमें 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे फायरिंग की जद में आकर और उनके लवाहिकीन सरापा एहतजाज अभी भी बने हुए हैं। जबकि अगर आप शेखुपुरा की जानिब जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सगियाँ का रास्ता जो है वो अख्तियार करें। शाहदरा के थ्रू रास्ता जाने के लिए जो है वो अख्तियार बिल्कुल ना करें क्योंकि ट्रैफिक का शदीद दबाव है। आपको बताया चलूँ कि शाहदरा वो शहर का खारजी और दाखिली रास्ता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक शदीद जाम है और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो लाहौर शहर पंजाब के दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होती हैं और यहाँ से बाहर जाती हैं। यही वजह है कि एक तो ट्रैफिक का लोड यहाँ पे ज़्यादा होता है और ऊपर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है जिसके बायस जो है वो एक बड़ा ट्रैफिक का जिन ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।